Good evening and welcome to this special broadcast. What really is Mission Varanasi as far as Arvind Kejriwal is concerned? He's the challenger. In a short span of over a year, he rose to become a serious political player, became the chief minister of the country's capital, and then chose to quit in 49 days. Arvind Kejriwal thinks out of the box. He has vanquished Sheila Dikshit, and now that he has in fact set sights on Varanasi, he has a master game plan up his sleeve that he has revealed only on Headlines Today. Arvind Kejriwal is a man on a mission, Mission Varanasi. The Aam Aadmi Party convener has revealed his vision on Headlines Today. The aim is not to win, the aim is to destroy Narendra Modi. तो लोग फिर किस चीज़ के लिए वोट करें? मोदी जी को हराने के लिए गलत सिस्टम को ध्वंस करना पड़ेगा, गलत सिस्टम को डिमोलिश करना पड़ेगा. And Kejriwal plans to stay on in the holy city till the polling day on the 12th of May. भूचाल आ जाएगा. उस क्रांति का आगाज करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ. वाराणसी के लोगों को ये कहने जा रहा हूँ कि तुम ही कर सकते हो. ये वाराणसी क्रांतियों की जननी रही है. The Aam Aadmi Party convener wants to change old political dynamics and war room strategies. He has a plan to fight Narendra Modi and he doesn't shy away from revealing it on Headlines Today. Kejriwal's most important strategy is to get other political rivals on board, asking them to put up a united fight. Apart from the big rallies, the Aam Aadmi Party chief is planning smaller and more intimate political gatherings, an intensive door-to-door campaign, distributing pamphlets, taking direct questions and providing quick answers. While he faces the charge of abdicating the power in Delhi, Kejriwal levels a similar charge on Narendra Modi, who he claims will retain the Vadodara seat out of sheer love for Gujarat. जिस दिन मोदी जी जीते 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को वो यहाँ से रिज़ाइन करके बड़ौदा चले जाएंगे. महीने भर में दोबारा चुनाव होगा. तो वाराणसी के लोगों को तो दोबारा चुनाव मिलेगा जिताने से, कुछ नहीं मिलने वाला. Even as he appeals to people to vote against both the BJP and the Congress to change the country, his most stinging attack is on the BJP leaders who he claims are capable of killing their own after assuming power. आपको याद होगा इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये धमकी दिया था मीडिया को कि हम एक एक को जेल में भेजेंगे, और आज ये खुद ये अपनी भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी के सर पर नारियल फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीवी ने इनकी कवरेज कम की होगी, इसलिए वापस खबर में रहने का उन्होंने ये अच्छा नाटक शुरू किया है. The question is Varanasi listening? Will the broom work its magic in the holy city? Bureau Report, Headlines Today. Now, Team Kejriwal is busy fine-tuning the winning strategy, which they say will humble Modi in Varanasi. There is a well-thought-out plan that's been set in motion to counter the Modi blitz. Part of the strategy is a one-of-its-kind buzz campaign with intensive door-to-door drive to touch every voter. Here's how the Aam Aadmi Party proposes to fight the epic battle in Varanasi. Arvind Kejriwal is ready for his biggest political battle. His adversary in Varanasi rides a drummed-up Modi wave. And Kejriwal enters the contest with a turning Aam Aadmi Party tide. So how will the Aam Aadmi Party win it? यही समझाएंगे कि भैया सोचो, मोदी जी को जिताने से तुमको क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा. वाराणसी में लोगों को जाकर कहेंगे कि सपने देखें. सपना थोड़ी है, लॉजिकली देखें. जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा. कुछ नहीं मिलने वाला. 4 सड़कें भी ठीक नहीं होने वाली वाराणसी के. The Aam Aadmi Party has a plan in place. For the next 1 month, the entire party war room will move to Varanasi. Aam Aadmi Party celebrities from Gul Panag to Yogendra Yadav will touch down at Ground Zero and camp. The plan is to rush 10,000 volunteers to Varanasi and use the massive surge to unleash an intensive door-to-door campaign. लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए
और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। The biggest boost for the Aam Aadmi Party came from the pullout of this man. Mukhtar Ansari bowing out of the Varanasi contest has added to the Aam Aadmi Party's confidence, and it has reasons for it. वो बड़ी बारीक निगाहें रख के ये आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी को कौन हरा सकता है, जो हरा सकेगा हम उसे वोट देंगे। Aam Aadmi Party is reassured that Muslims in Varanasi will back Arvind Kejriwal as he is the strongest candidate. With SP and BSP both not canvassing votes for their candidates, he believes their votes will get tilted towards Arvind Kejriwal. But the biggest strategy is to divide the Hindu votes, which could actually cut Modi's votes and benefit Arvind Kejriwal. Headlines Today was the first to get you these posters that got you a glimpse of the Aam Aadmi Party's campaign plan. The party telling Varanasi not to vote for a man who sides with people who sanction violence against people from the region. What's more, the party will propagate that Modi will pick Vadodara over Varanasi. It also will question the work done by the BJP for Varanasi in the past. For giant killer Kejriwal and for the Aam Aadmi Party, Battle Varanasi is a high-stakes contest and one which will see the Aam Aadmi Party bring its A game to the table. Bureau Report, Headlines Today. So what really is Plan Varanasi? What really is the Mission Varanasi? Arvind Kejriwal's mission in his own words. In an exclusive interview to my colleague Anurag Dhanda, Arvind Kejriwal actually put out the plan. हमारी मुख्तार अंसारी जी से कभी कोई बात नहीं हुई है। मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, जात का वोट, धर्म का वोट, इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। 400 में से 5-10 ने छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे तो होता ही है। स्ट्राइक कितना हुआ? लेस देन 1%। अरविंद को नहीं चाहिए सत्ता, अरविंद को पैसा नहीं चाहिए। आपका चुनाव है अनुराग, आपको सोचना है, इस देश के लोगों का चुनाव है। लोग लड़ेंगे, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोग कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये चुनाव नहीं है, ये क्रांति है। इसको क्रांति में तब्दील करना है, इसे अरविंद चुनाव बनाना है। अरविंद यहीं से मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहीं से कई सवाल शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा चुनाव नहीं है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो लोग एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और आप उस ऑप्शन से बैकआउट कर जाते हैं हमेशा। आप कहते हैं मुझे एमपी नहीं बन रहा है, मैं एमपी बनने नहीं आया हूँ बनारस, तो लोग फिर किस चीज़ के लिए वोट करें? मोदी जी को हराने के लिए। क्या ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है अरविंद? आप कह रहे हैं किसी को हराने के लिए मैं आया हूँ, मैं एमपी बनने नहीं आया हूँ। पहले गलत चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा ना, गलत सिस्टम को ध्वंस करना पड़ेगा, गलत सिस्टम को डिमोलिश करना पड़ेगा, उसी के अंदर से खूबसूरती निकलेगी। मैं आपको बताता हूँ, 2 वो देता हूँ। अमेठी में अब मैं कैलकुलेट कर रहा था, 30-35 साल हो गए गांधी फैमिली के लोगों को जिताते हुए। अमेठी वाले जिता रहे हैं, क्या मिला अमेठी वालों को? कुछ मिला? कोई बहुत सब कुछ बदल गया हो? या अमेठी की गांधी परिवार तो इस देश पे कब से राज कर रहा है, क्या मिला लोगों को? कुछ नहीं मिला। मैं इस बार उनको कहने ये जा रहा हूँ कि इस बार हरा के देखो क्या मिलता है। जिताने से तो कुछ नहीं मिला, एक बारी तो हरा के देख लो, एक बारी चांस तो दो, हरा के तो देखो क्या मिलता है। हरा के एक बारी देखो, इस देश की राजनीति पलट जाएगी। राजनीति में कमाल का बदलाव आएगा। अगर गांधी परिवार हार गया तो कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। इधर बनारस में मोदी जी को जिताने से क्या मिलेगा बनारस के लोगों को? जिस दिन मोदी जी जीते, 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को वो यहाँ से रिज़ाइन करके बड़ौदा चले जाएंगे। महीने भर में दोबारा चुनाव होगा, तो वाराणसी के लोगों को तो दोबारा चुनाव मिलेगा जिताने से। कुछ नहीं मिलने वाला, जिताने से तो कुछ नहीं। हरा के देखो, भूचाल आ जाएगा। उस क्रांति का आगाज़ करने के लिए मैं वाराणसी जा रहा हूँ। वाराणसी के लोगों को ये कहने जा रहा हूँ कि तुम ही कर सकते हो ये। वाराणसी क्रांतियों की जननी रही है। वाराणसी के लोगों ने इस बार अगर मोदी जी को हरा दिया, एक ऐसी क्रांति आएगी देश में। उधर कांग्रेस टूट जाएगी राहुल गांधी की, और इधर मोदी जी की बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। जो समुद्र मंथन होगा उसमें से नई किस्म की राजनीति। पहले ये छोटे मोटे दल लड़ेंगे साल भर तक, आपस में लड़ कट के मरेंगे। साल भर में दूसरा चुनाव होगा, उसमें अच्छे लोग जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस ख़त्म हो जाए। ये 2 राक्षस हैं,
इन राक्षसों को ख़त्म किए बिना इस देश के अंदर नई किस्म की राजनीति जन्म ले सकती है, और ये दोनों ख़त्म होंगे इस बार। आप इमेजिन, कल्पना करके देखो, 16 मई का दिन है, आप टीवी के सामने बैठे हो, अचानक रिजल्ट आता है, नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार गए, राहुल गांधी अमेठी से हार गए, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस का क्या होगा? आप जरा कल्पना करके देखो, भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में। वाराणसी के लोगों को मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जिताने से क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा, जरा सोच के देखो 5 मिनट। सपने देखने चाहिए, अच्छे भारत का सपना देखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है, इस देश के लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि सपने तो देखो। आप जब ये कहते हैं कि जब ऐसी बात करते हैं, आप कहते हैं कि 1 साल में दोबारा चुनाव होगा, एक बार हरा करके देखो, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये नहीं जाता? आपको लगता है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आप तो इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, हर चीज़ में आप कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, गैस के दाम 4 गुना बढ़ाने वाले हैं ये चुनाव के बाद। सारों के घर में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सारों के घर में इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। अब मैं ये कह रहा हूँ, इन नेताओं के घर में इंस्टेबिलिटी करते हैं, नेताओं के घरों में अराजकता फैलाते हैं, नेताओं के घरों के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी करके देखते हैं। ये इंस्टेबिलिटी शब्द इन लोगों ने थोपा है हमारे ऊपर। स्टेबल सरकार, स्टेबल सरकार। अरे स्टेबल सरकार किसको चाहिए? स्टेबल सरकार अंबानी को चाहिए, स्टेबल सरकार अडानी को चाहिए, स्टेबल सरकार नरेंद्र मोदी को चाहिए, स्टेबल सरकार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, इनको चाहिए, कपिल सिब्बल को चाहिए, लूटने के लिए 5 साल की स्टेबल सरकार। जनता को तो ईमानदार सरकार चाहिए। आज़ादी के बाद की आप ये बताओ, कोलिशन गवर्नमेंट, सबसे स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट किसने दी है? आज़ादी के बाद सबसे स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 10 साल तक उन्होंने स्टेबल गवर्नमेंट दी है, कोलिशन। फिर क्यों दुखी हो? अगर स्टेबल गवर्नमेंट ही चाहिए होती तो सबसे स्टेबल गवर्नमेंट तो दे रखी है मनमोहन सिंह ने। क्यों दुखी हो? इसलिए दुखी हो क्योंकि सबसे ज़्यादा घोटाले उन्होंने किए। 2G किया, कोयला घोटाला किया, IPL घोटाला किया, एयरक्राफ्ट घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले किए, रोज़ 4 घोटाले किए उन्होंने। तो लोगों को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए। वो ये भी नहीं दे सकते, ना नरेंद्र मोदी दे सकते, ना बीजेपी कांग्रेस वाले दे सकते। नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे लोगों को अपने साथ रखा हुआ है। गुजरात की उनकी कैबिनेट के अंदर बाबूलाल बोखरिया, जिसको 3 साल की कैद हुई है घोटाले के अंदर कोर्ट से, वो उनका कैबिनेट मंत्री है। पुरुषोत्तम सोलंकी, जिसके ऊपर 450 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो उनका कैबिनेट मंत्री है। सौरभ पटेल, जो कि अंबानी परिवार का दामाद है, उसको उन्होंने गैस मंत्री उठा के दे दिया। और येडियुरप्पा को उन्होंने टिकट दी है, श्रीरामुलु को उन्होंने टिकट। ये सारे लोग अगर कैबिनेट बनाएंगे देश की, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में और नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में फ़र्क क्या है? कुछ बदलाव आएगा? सब कुछ वही रहेगा। उनको भी अंबानी और अडानी चलाते थे, इनको भी अंबानी और अडानी चलाते हैं। लोगों को कहेंगे, यही समझाएंगे कि भैया सोचो, मोदी जी को जिताने से तुमको क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा। वाराणसी में लोगों को जाकर कहेंगे कि सपने देखें। सपना थोड़ी है, लॉजिकली देखें। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला, 4 सड़कें भी ठीक नहीं होने वाली वाराणसी के। जिताने से क्या मिलेगा? एक और चुनाव मिलेगा, 1 महीने के अंदर एक और चुनाव। हराने से क्या मिलेगा? देश की राजनीति में भूचाल आएगा। पूरे देश की राजनीति बदलने के लिए एक संभावना, एक अवसर तैयार होगा, और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? वाराणसी के लोगों को। और मेरे को लगता है ये वाराणसी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से कई क्रांतियों ने जन्म लिया है। अंग्रेज़ों के समय भी वाराणसी ने न जाने कितनी क्रांतियों को जन्म दिया है। वाराणसी ने न जाने कितने क्रांतिकारियों को पैदा किया है। वाराणसी के लोगों के खून में है, उनके कल्चर में है, वो कर सकते हैं ये। छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेंगे, घर घर जाएंगे, पर्चे बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे? वहाँ डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि वो भी वहाँ पर जाएंगे, 200 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर जाएंगे बीजेपी के। सिद्धू को भी समझाएंगे कि सोच के देखो, नरेंद्र मोदी को जिताने से क्या मिलेगा और हराने से क्या मिलेगा। के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? क्या स्ट्रेटजी है क्या? और अमेठी के लिए वक्त कब निकालेंगे? अमेठी के लिए मैं वहाँ कई दिन रुकूंगा। मैं 15 की सुबह बनारस पहुँचूँगा, उसके बाद बनारस और अमेठी के बीच में शटल करता रहूँगा। काफ़ी टाइम अमेठी में, काफ़ी टाइम बनारस में। आपकी एक सभा प्लान की जा रही है, आप बनारस जाते ही सबसे पहले ये पर्चे बांटे जा रहे हैं कि लोग आएँ और मुझसे सवाल पूछें, किसी भी तरह के सवाल पूछें, सब सवालों के जवाब मैं दूँगा। हाँ, सभा नहीं है, मतलब वो कोई रैली वैली नहीं है।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी तो मीडिया के थ्रू वो सुनते हैं, लोग सीधे प्रश्न करें। यहाँ तक कि हमारे जो घोर विरोधी हैं वो भी आए उसमें, वो भी क्वेश्चन पूछें मेरे से। और हो सकता है वो असहमत हों। उस पर्चे में ये लिखा है कि शिष्टाचार के तहत रह के करें, वहाँ हिंसा ना करें, नारेबाजी ना करें, शिष्टाचार के तहत। और सवाल जवाब तो होनी चाहिए जनतंत्र के अंदर, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है ये मुमकिन है इस तरीके का संवाद हो पाएगा? क्योंकि आप जब रोड शो करते हैं तो आप पर हमला हो जाता है, आपको कोई मेरे को तो हमले से डर नहीं लगता। मेरी तो जान हाजिर है, तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा रखा है। सब कुछ, रात दिन सोते नहीं है, जागते, सब कुछ दांव पे लगा रखा है। मेरे को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन जनतंत्र के लिए खतरे हैं। और एक और चीज़ है कि जिस किस्म के लोगों को चुनौती दी जा रही है, जिस किस्म के बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट को चुनौती दी जा रही है, वो हमले तो करेंगे, चुप नहीं बैठने वाले। Now, Arvind Kejriwal has used each adversity to his advantage, and now he has gone ahead and made a bigger claim. At a book release function, Kejriwal said that the attacks with eggs, ink and punches will become more dangerous once elections are over. अभी ऐसे तो चुप बैठने वाली नहीं है। अभी तो ये थप्पड़ लात घुसे ही मार रहे हैं। अभी तो ये अटैक जो है वो और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं आने वाले समय में। मुझे तो ये लगता है कि शायद चुनाव तक ये कुछ ना करें, क्योंकि उनको लगता है चुनाव तक कुछ कर दिया तो उल्टा पड़ जाएगा। चुनाव के बाद ये लोग नहीं छोड़ने वाले हम लोगों को, उसके बाद असली अटैक शुरू होंगे हम लोगों के। Now, political leaders have repeatedly made the mistake of underestimating Arvind Kejriwal when that is his biggest asset, really. He has done it against Sheila Dikshit, and now Team Modi would be immature to underestimate the power of a challenger. Inked, slapped, punched. अभी ऐसे तो चुप बैठने वाली नहीं है। अभी तो ये थप्पड़ लात घुसे ही मार रहे हैं। अभी तो ये अटैक जो है वो और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं आने वाले समय में। मुझे तो ये लगता है कि शायद चुनाव तक ये कुछ ना करें, क्योंकि उनको लगता है चुनाव तक कुछ कर दिया तो उल्टा पड़ जाएगा। चुनाव के बाद ये लोग नहीं छोड़ने वाले हम लोगों को, उसके बाद असली अटैक शुरू होंगे हम लोगों के। Add undeterred to that list of verbs. Arvind Kejriwal's fight is not driven solely by statistics, but by the need to mold public perception. Appearing to have been forced into politics. An underdog who won. ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। A middle-class messiah who gave up the seat of power, all for principles. Not one to preach from a dais, he believes in direct contact. That's what Arvind Kejriwal would have his loyal followers believe. But the failure of the final dharna was an indicator that it was time to re-strategize. And then came the big announcement. मोदी जी को हराने के लिए पहले गलत चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा ना, गलत सिस्टम को ध्वंस करना पड़ेगा, गलत सिस्टम को डिमोलिश करना पड़ेगा, उसी के अंदर से खूबसूरती निकलेगी। Announcing his candidature from Varanasi against Narendra Modi was the final flourish in the David versus Goliath image that has been carefully honed for the last 3 years. लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, गैस के दाम 4 गुना बढ़ाने वाले हैं ये चुनाव के बाद। सारों के घर में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सारों के घर में इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। अब मैं ये कह रहा हूँ इन नेताओं के घर में इंस्टेबिलिटी करते हैं। What his critics call the shoot and scoot approach in naming big corporates like Vadra, Ambani and Adani, his supporters hailed as bravery. It's Arvind Kejriwal versus the rest of the world, and the Aam Aadmi wouldn't have it any other way. Bureau Report, headlines today.